So एक एक करके you can tell me the questions which you have the doubt, else we will practice the TPPs, right? You are telling me about test practice problems, Isaac Joel Wilson. Is that test practice problem? All right, yesterday's test. अच्छा, उससे पहले मुझे ये क्लियर कर दो, इसमें कोई डाउट्स हैं किसी को? ओके, वी विल डिस्कस यस्टरडेज टेस्ट। उससे पहले ये मॉड्यूल में टीपीपीज आप लोगों ने कर लिया 1 and 2? एवरीवन हैज डन दैट? 1 तो करना था ना, 1 तो एटलीस्ट होमवर्क था, लास्ट ही टाइम मैं कह दिया था। टीपीपी 1 यू ऑल हैव टू डू। Today we will discuss one. TPP 2 you all can attempt today, tomorrow, or any day. In the next class we will discuss TPP 2. तो आज हमें TPP 1 डिस्कस करना है सबसे पहली चीज, and then we will see yesterday's test discussion. I'll just create the poll, क्योंकि अगर मेजर पर्सन्स अगर ये TPPs नहीं किए होंगे, then there is no point to discuss today. Okay, so you all can let me know how many of you have done the TPPs. जितने लोग टीपीपी कर चुके हैं, दे कैन लेट मी नो। मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट, ठीक है। सो ऑल राइट, वी शुड डिस्कस द टीपीपीज टुडे फर्स्ट। पहले टीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, कल का टेस्ट तो मैंने नहीं बनाया था। सो वी विल स्टार्ट विद द टीपीपीज डिस्कशन, एंड रिमेंबर टीपीपी 2 यू ऑल हैव टू अटेम्प्ट। जिन्होंने नहीं किया है 1, वो भी करेंगे, and those who have joined new, so they will concentrate very carefully. Okay, so first, the first 5 questions from the TPPs. So along with me what we will do, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि
आप लोग यहाँ वापस करोगे because of course major of you have not attempted the TPPs. So all right, one by one, quickly we will discuss the simple questions. क्वेश्चन 5, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे एक एक करके, सब कर लेंगे। Okay, in between my voice, if it breaks, let me know. I shall change the network because as I said, there is heavy rain here. Okay, question number 1. An object may have varying speed without having varying velocity without having varying speed, non-zero acceleration without having varying velocity, or none of these. This is a very simple question. So only one response I have got कि B होगा. Everyone agrees with B. See, if we talk about the object will have varying velocity without having varying speed. See, if you look at option A, varying speed without having varying velocity, अगर velocity vary नहीं करेगा, so object का speed vary कैसे करेगा? Because we know velocity क्या होता है? This is speed in a particular direction. तो अगर हम let us suppose B को ही पहले concentrate करते हैं, अगर हम velocity की variation की बात करें, तो ये variation स्पीड के वेरिएशन से भी हो सकता है या डायरेक्शन के वेरिएशन से भी हो सकता है, राइट? डायरेक्शन चेंज होंगे तो भी वेलोसिटी वेरी होगा। सो ऑप्शन बी सेज yes, option B says object have varying velocity, okay, without having varying speed. This is possible because velocity may vary even by changing direction. B will be the right fit. अब जिनको भी डाउट है ना, दे ऑल कैन लेट मी नो, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे नहीं, हाउ कैन आई नो कि मैं ये क्वेश्चन करवा दिया हूं, इसमें कोई डाउट है आपको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2, velocity of a particle is 0 at t equal to 0. What does this mean? 2 option A. Everyone should check. Unfortunately, I am not able to create the poll due to some reason. All can message me on chat itself. एक मुझे ए भी मिला ऑप्शन, तो अभी तक बी और ए मिला है, मैक्सिमम बी एंड मिनिमम ए। एक और बी। जल्दी जल्दी गाइस, वी हैव ऑलमोस्ट 60 प्लस क्वेश्चंस, एक एक मिनट अगर दें then we will be able to complete them in an hour. Okay, most of you say option B, and let us have a look. Velocity of a particle is 0 at t equal to 0. ये रहा ऑब्जेक्ट, t इक्वल टू 0 मतलब कि इनिशियली, है ना, इनिशियली जब इसकी वेलोसिटी 0 है, देन एक्सीलरेशन में बी 0, बी। देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है अभी वो पहले भी रेस्ट पे हो, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? We do not know the history about the motion of the object.
तो अगर मैं कहा कि ये ऑब्जेक्ट इट्स स्पीड इज और इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना? तो इस पॉइंट पे मतलब कि t इक्वल टू 0 पर ही अगर बात करें, देन इन दिस केस एक्सीलरेशन is 0, that is possible, but acceleration which is non-zero, that is definitely this is also possible. क्यों? क्योंकि हो सकता है ना ये अगर यहाँ पर है तो कोई फोर्स इस पे उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, राइट? सो इट शुड बी हैव, देखो एक्सीलरेशन का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, राइट? और यू कैन से dv by dt. तो एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी ही मैं कह दिया 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि change is 0, right? So there is possibility acceleration can be 0 or it cannot be 0. Okay, most of you agree with B. Number 3, particle is moving along the axis as x is equal to this function. The initial velocity, acceleration at t equal to 4 and acceleration is 2a or a. Which one is right? ये तो बिल्कुल आसान है. The most easy problem. Initial velocity of a particle is u. मतलब t इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करो, देखो क्या मिलेगा, u इंटू -2 प्लस यहाँ पे t 0 पुट करो तो क्या मिलेगा 4a. तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या इस पोजीशन पे डिपेंड करता है? लेट अस सी हियर विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑप्शंस. पहले हम डी ऑप्शन से करेंगे क्योंकि उसमें इसी इक्वेशन में पुट करके हम निकाल सकते हैं. एंड दिस इज पोजीशन टाइम वेरिएशन, राइट? तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी dx by dt. फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन dv by dt. ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन पुट कर सकते हो. तो पहले पोजीशन है हमारे पास, पोजीशन पे ही देख लेते हैं. टाइम 4 अगर मैं पुट किया तो क्या x की वैल्यू 0 आएगी? नो, डी ऑप्शन इज रॉन्ग. सो लेट अस डिफरेंशिएट. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? u, ये देखो u इंटू टी -2 इंटू यू प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4at. ये मुझे मिला एक्सपेंशन x का. So if I differentiate, I'm gonna get u plus 2at minus 4a. So initial velocity, that means अब यहाँ पर t पुट करेंगे, राइट? पहले हम जो यहाँ पुट कर रहे थे वो t इक्वल टू 4 पे था, t इक्वल टू 0 पे नहीं था पोजीशन, राइट? सो दैट वाज नॉट राइट. तो करेक्ट क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी के लिए t 0 पुट करेंगे तो क्या v हमारा u आ रहा है? नो, v इज कमिंग टू बी u minus 4a. u minus 4a. सो दिस ए वाला भी ऑप्शन सही नहीं है. मतलब एक्सीलरेशन अब बी और सी में से कोई करेक्ट होगा. सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस अगेन. तो डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट है, दे ऑल बिकम 0 एंड 2a इज द एक्सीलरेशन. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट? जितनों को भी सी मिला दे आर राइट. ओके, नेक्स्ट वन. टू कार्स आर गोइंग. ओके, नंबर 4. टू कार्स आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, पॉजिटिव डायरेक्शन में है. कार ए टुक t1 seconds. Car B took T2 seconds to cover the journey, where T1 is greater than T2. Okay, so two cars are going from A to B. ये रहा A, ये रहा B. Okay, सभी कोई करेंगे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि
अगर आपके पास आंसर्स एक्सेसिबल है, सो नो वन शुड टेल मी द आंसर्स वॉचिंग फ्रॉम दैट, सभी कोई करेंगे। मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी ऑप्शन सी योर मार्किंग। चलो देखते हैं, एक डी भी मिला। एवरीवन ट्राई दिस आउट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आई विल डू, दिस इज अ डाउट। किसी ने ये फिफ्थ क्वेश्चन डाउट कहा था। नंबर 4 कंटिन्यू डूइंग। एक और सी मिला। चलो मैक्सिमम ऑफ यू अग्री विथ सी, लेट अस चेक। टू कार्स आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। कार ए कितना टाइम लेता है? T1। कार बी कितना टाइम लेता है? T2। सो हियर इट सेज T1 इज ग्रेटर देन T2। ये देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। T1 इज ग्रेटर देन T2, so you have to relate the average speed या average velocity. Positive direction, you have been given the direction also. So if you check for car A, the average speed of A, average speed of A कितना होगा? Total distance, let us say the distance to be x divided by total time T1. Average speed of B, remember now we are talking about the speeds. Average speed of B क्या होगा? x by T2. तो अगर T1 बड़ा है T2 से, सो VA क्या होगा? छोटा होगा VB से। क्यों छोटा होगा? जस्ट ऑब्जर्व, एवरेज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम बिकॉज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना। इफ स्पीड इज इनवर्सली रिलेटिंग टू टाइम, तो अगर T1 बड़ा है तो V1 VA छोटा होगा। तो एक तो मुझे करेक्ट मिला, एवरेज स्पीड ऑफ कार बी। ये देखो कार बी का जो एवरेज स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन कार ए, तो ये चलो ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी वाला क्यों नहीं हो सकता है? देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन भी तो दे रखा है, तो हम एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी, क्योंकि आपने सी ऑप्शन मुझे बताया है, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक क्यों नहीं ले सकते हैं? एक्सीलरेशन नहीं है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। कैसे पता चला एक्सीलरेशन नहीं है? ठीक है, गिवन नहीं है, ओके, मैं एग्री करता हूं। इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटेड। बट अगर हम एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला देखें, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी तो होता था। तो माय क्वेश्चन इज कि इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कहूंगा ना। इफ आई टॉक अबाउट देयर मैग्नीट्यूड्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे बोथ आर इक्वल। तो अगर इक्वल है, तो एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं कह सकता मैं? एनी वन ऑफ यू? देखो, जो जो सी बताए हैं ऑप्शन, दे यू ऑल शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ऑप्शन डी, राइट? क्योंकि एक मुझे ऑप्शन डी भी मिला है। Who all said C? You should be able to distinguish this D. Any one of you? जैसे मैं सी का देखूं ऑप्शन, तो सबसे पहले सी का ऑप्शन लेट्स से क्रिश। तो क्रिश का तो रिस्पांस मुझे मिल गया। वी डू नॉट नो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कार्स। चलो ये मैं मान सकता हूं।
ये मैं मान सकता हूँ, ट्रेजेक्ट्री पता नहीं है, बट फिर भी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख दूं, सो यू ऑल हैव टू टेल मी वेयर आई एम रॉन्ग। इट सेज हियर टू कार्स आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे रखा है ना। पॉजिटिव मतलब कोई एक डायरेक्शन को हमने अगर पॉजिटिव लिया, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया एंड टू कार्स आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होंगे ना। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन डी भी करेक्ट होना चाहिए। सर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ये नहीं पता ना हमको। अच्छा, मतलब कि हो सकता है ऐसे हो, राइट, यू से ये हाँ ऐसे हो। हाँ सर, ऐसा हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन से मैं अगर ये समझूं, पॉजिटिव डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन को हम फिक्स कर देते हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन को, राइट डायरेक्शन को हम फिक्स कर दिए, बट ये ट्रेजेक्टरी कैसे हो सकता है? अगर ऐसे मूव कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, हाँ सर। है ना। तो अगर यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन मेंशन्ड है, सो वी आर श्योर कि ये एक डायरेक्शन कांस्टेंट है जब ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सर पर एक ही कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव ही चल रहा है ना सर। कौन, क्या, किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में? क्या बोल रहे किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में? हैं? सर कुछ सर अगर हम देखें तो ये ऐसे भी हो सकता है, लाइक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई कंपोनेंट में पॉजिटिव हो रहा है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये हाँ, डायरेक्टली मोशन में। तो वो अगर प्लेन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये मतलब वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, एक्स के तरफ तो मतलब बी की तरफ तो थोड़ा तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है थोड़ा तो पॉजिटिव ही हो रहा है उस राइट रेस्पेक्ट राइट, में देखेंगे तो। चलेगा। दैट मीन्स वी आर मोर श्योर दैट एवरेज स्पीड इज ऑफ बी इज ग्रेटर, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हाँ सर। राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी मेंशन नहीं है कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगा? ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 5, जो कि एक डाउट था। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय, चलो ये डिस्प्लेसमेंट है 6 + 12t - 2t स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 5 सेकंड। ये डाउट क्यों था? लेट मी सी हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो हमने सबसे बेसिक क्वेश्चन इसको कहेंगे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट, व्हेन यू माइट हैव गॉन थ्रू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब जो हम करते थे उसमें ये तो बेसिक था। सर ए है सर आंसर 16। इसमें क्या करोगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, dv/dt। dv/dt। उससे तो हमारा ये वेलोसिटी निकल जाएगा, dv/dt। अगर dv/dt करोगे तो a मिल जाएगा, ds/dt करोगे तो v मिल जाएगा। इसमें क्या ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है? जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिस्कस किए थे, तो उसमें से ये बेसिक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास पूछा है कि एट t = 5 सेकेंड्स क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड, तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे ना। अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन है तब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, जो भी है। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी है और हमें देखना है कि इन 5 सेकेंड्स हाउ मच distance the object has covered, so I'll just put this in this equation। तो हमें कितना मिलेगा? सर 16 मिलना चाहिए सर, पीछे आंसर 26 दिया है। let us check if I put here 6 + 12t, so 6 + 6t - 50, सर तो मुझे ये, भी यही आया सर, 16 आया। हाँ देखते हैं देखते हैं। देखो एक और चीज है, ध्यान दो,
दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो तुम्हें इन 5 सेकेंड्स ये जो 16 मीटर मिला, ये क्या मिला? ये डिस्प्लेसमेंट मिला। एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 5 सेकेंड्स तो ओके, 0 सेकेंड पे भी तो देखो कि ये कहाँ पर है। एट t इक्वल टू 0, 6 meters. 6 meters. And in next 5 seconds it goes to 16 meters. सर लगता है पीछे आंसर गलत दिया है। 16 क्या पूरा क्या दिया हुआ है पीछे आंसर? 26 दिया है सर। डी दे दिया पर एक्चुअली 16 लग रहा है सर मेरे को। हाँ लेकिन let us check described by the relation the distance covered by the particle in first 5 seconds। तो इसमें मुझे डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट तुम निकाल सकते हो 16 मीटर, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है भाई। इससे हम डिस्टेंस कैसे कह सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस? इट्स नॉट आल्सो मेंशन्ड कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये मेंशन हाँ नहीं है, तो हम 16 मीटर तो 100% नहीं कह सकते हैं ना। अब आई डोंट नो हाउ दिस 16 मीटर इज गिवन इन द आंसर, लेट अस नहीं चेक। सर 26 मीटर दिया है सर आंसर। अच्छा 26 दिया है, चलो देखते हैं। बट ये 16 तो नहीं होगा, राइट? 16 will not be there because this is the displacement in the first 5 seconds. Let us find out the distance traveled. तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, let us find out the velocity। आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, एग्जैक्ट ये नहीं था, वो मैंने खुद से उस समय जब हम पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तब हमने एक क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लोर किया था। तो सर एटलीस्ट हम, हाँ सर एक डाउट है सर, अभी यहाँ डिस्टेंस पूछा है सर। हाँ, सर डिस्टेंस जब पूछा है तो हमें पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ये पता चल रहा है। अगर वो डिस्टेंस स्ट्रेट स्ट्रेट पूछा है, लाइन लिखा है ना, हाँ। अगर स्ट्रेट लाइन लिखा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना सर, 16 मीटर ही होगा ना सर। तो स्ट्रेट लाइन ये भी तो हो सकता है, ये 100% मेंशन नहीं है ना, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट द मोशन, हाँ सर तो है ना, ये भी है। और इसकी अगर थ्रू आउट द मोशन हम ले तो यहाँ से यहाँ आ रहा है और इधर मूव कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन हुआ, आने वक्त भी स्ट्रेट लाइन हुआ, बट इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो अलग होंगे ना। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई हाँ कि सर। किस पॉइंट से वो टर्न किया, उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? फाइंड आउट द वेलोसिटी। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? 0। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, हाँ सर चेंज इन राइट? पूरा चेंज डायरेक्शन हो रहा है। हाँ हाँ, सर। सो लेट अस ऑब्जर्व, डिस्प्लेसमेंट दिया है, अब वेलोसिटी नहीं निकालेंगे तो हमें आइडिया नहीं मिलेगा। ये होगा 12 माइनस 4t, तो 0 कर दो। वेलोसिटी 0 कब हो रहा है? 3 सेकेंड्स पे। तो देखो हमें अब आइडिया मिला कि ये जो हम डिस्टेंस कह रहे थे ना, दैट्स रॉन्ग। 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया और फिर 2 सेकेंड तक ये वापस यहाँ तक आया कहीं पर। नाउ दिस इज अंडरस्टूड। नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब कैसे निकालेंगे? 3 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, एंड देन जस्ट ऐड देम। Yes, Terence, it's not directly mentioned in the question that it's changing the direction, but we have got that it is changing the direction. क्योंकि हमने displacement निकाला, we cannot say that it is distance. So, okay, in the first 3 seconds हमारा displacement क्या हुआ? 6 plus 36 minus सर एक 18. डाउट है सर। हाँ, सर इनिशियल पोजीशन को ए मान लेंगे, फाइनल को बी मान लेंगे, okay. और वो जो 2 सेकंड का डिस्टेंस है उसको सी लगा देंगे। तो अभी सी टू बी और वापस बी टू सी सेम डिस्टेंस होगा डिस्टेंस? नहीं, सेम कैसे होगा? नहीं वो होगा ना तो सर? नहीं होगा, वो 3 सेकंड में A to B जा रहा है,
फिर 2 सेकंड में B to C जा रहा है, तो टाइम कम ले रहा है ना, हाँ सर। तो अलग होना चाहिए। तो देखो सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, क्योंकि हमें पता है this is a straight line along positive direction and this is a straight line motion along negative direction। तो ये कितना हो गया हमारा, in 3 seconds what we have got the displacement, and in 2 seconds what we have got the displacement, we have to add them। तो पहले देखो A to B डिस्टेंस निकालते हैं, A to B। A to B निकालने के लिए हमें t इक्वल टू 0 क्या पोजीशन था इसका, हमारा एक्सप्रेशन था s was 6 + 12t - 2t स्क्वायर। तो t इक्वल टू 0 पे s was 6 meters, t इक्वल टू 3 पे व्हाट इज s, 3 पुट किया यहाँ पर तो क्या मिला, 6 + 36 - 18। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t हियर एज 3, यू विल गेट दिस, जिसका की है कितना, 24। ओके तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, ये मिला मुझे 24। एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन यू कैन से दिस इज द पोजीशन at t equal to 0, this is the position at t equal to 3। ऐसे ही करके 2 सेकेंड्स पे निकालेंगे एंड देन वी विल ऐड देम टू गेट द कंप्लीट डिस्टेंस। Quickly check what answer you are getting now। क्या मिला यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स 24 - 6 18 मीटर्स। बी टू सी जब जा रहा है, जल्दी जल्दी क्विकली लेट्स कंप्यूट, बी टू सी जब जा रहा है तो t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक, तो एट t इक्वल टू 3 यहाँ पर 3 पुट करेंगे, इन दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट 24 24 सर। राइट। 5 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 6 + 60 - 50 16 मिलेगा सर। 16 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फ्रॉम 24 to 16, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में करते हैं, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिलेगा 8 एंड टोटल डिस्टेंस ऐड कर दो, यस वी आर गेटिंग 26 meters। So meanwhile you all should keep checking the answers and let me keep me सर एक बार aware also। वापस पहले से रिवाइज कर देंगे सर क्वेश्चन को। हाँ करते हैं, अब रिवाइज करते हैं, ये थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे, तो आप लोग आंसर चेक करते रहना, इन बिटवीन कोई कैलकुलेशन एरर या कुछ होता है लेट मी नो, कीप मी अवेयर। ओके तो ये रहा क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या दिया हुआ है, रिलेशन 6 +
12t minus 2t square. You have to find the distance covered in first 5 seconds. तो सबसे पहला चीज यहाँ पर t इक्वल टू 5 देंगे तो हमें डिस्टेंस 16 नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ नहीं, डिस्टेंस नहीं मिलेगा, राइट। सो वो चीज पहले हमें अवॉइड करना है। लुक केयरफुली द कीवर्ड्स। नाउ हाउ डू वी फाइंड whether it is going in what direction it is going basically? तो पहले हम वेलोसिटी ढूंढेंगे, तो वो मिलेगा 12 माइनस 4t। क्यों वेलोसिटी हमने ढूंढा? बिकॉज दिस माइट बी पॉसिबल, हम जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे राइट में जा रहा है और फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस आ जाए, है ना। सो वी आर नॉट श्योर कि इन दिस 5 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट विल जस्ट कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है बट ये अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं। सो वी हैव टू एनालाइज कि केस हमारा ये है या फिर केस हमारा ये है, ठीक है। नाउ वो डिटरमाइन कैसे होगा कि केस हमारा ये है फर्स्ट या फिर केस सेकंड है? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, जब भी हम वेलोसिटी लाए, अगर ये केस है तो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट आएगा आएगा, ये रुकेगा एंड देन फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। उसकी वेलोसिटी 0 होगी। So how did I get this velocity? I just differentiated this because we know v is equal to ds by dt. Yes, Shuktika, now understood कि velocity कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे? How many of you joined new? Let me know so that I be sure. जो न्यू ज्वाइन किए हैं, लेट मी नो दैट देयर नेम्स। सो v इक्वल्स टू 12 माइनस 4t, ये आया हमारा ds by dt करने से। ओके, सो आई जस्ट इक्वेट इट टू 0 क्योंकि मुझे पता करना है एट व्हाट टाइम दिस वेलोसिटी इज बिकमिंग 0। मतलब एट व्हाट टाइम ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जा रहा है। तो यहां से मुझे सॉल्व करने पे t मिला 3 सेकेंड्स। तो मुझे पता चल रहा है कि ये केस नहीं है। नाउ द केस इज ऑब्जेक्ट यहां से यहां 3 सेकेंड में आ रहा है एंड देन इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ठीक है, इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब कि 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था वो भी डिटरमाइन करना जरूरी है। तो 0 सेकेंड पे यहाँ पर ये रहा इक्वेशन हमारा s इज इक्वल टू 6 प्लस 12t माइनस 2t स्क्वायर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द पोजिशंस एट t इक्वल टू 0, at t इक्वल टू 3, at t इक्वल टू 5। तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है? यहाँ पर 0 पुट करेंगे, मिलेगा 6 मीटर्स। t इक्वल टू 3 पे क्या है? पुट हियर 3, यू विल गेट 26 मीटर्स। एट t इक्वल टू 5 क्या है? पुट हियर 5, व्हाट यू विल गेट? 16 meters. ओके, नाउ इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब यहां से यहां तक जा रहा है जो, तो डिस्टेंस क्या होगा? 26 माइनस 6, क्योंकि ये पोजीशन क्या है? 26 मीटर, ये पोजीशन क्या है? 6 मीटर। तो डिस्टेंस इज 26 माइनस 6। नेक्स्ट 3 सेकेंड से 5 सेकेंड्स, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पोजीशन एट 5 एंड एट 3, तो हमें मिलेगा -10। तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 10 मीटर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया, ये कैसे हो गया? एक मिनट, लेट्स सी द कैलकुलेशन। 6 मीटर एट t इक्वल टू 3, 24, right? 36 minus, if I put here 3, 18 and then 6, so I'll get 18, 6, 24. Okay, so you'll get 24 minus 6 and then 16 minus 24, so minus 8, so you will get 8 meters. 8 meter there and 18 meter here. If you add, you will get the distance, and the distance here is 26 meter. Now I hope everyone would be clear about this. Okay, moving to the next questions. अब समझ में आया ना सभी को ये? Remember everyone, the direction of motion is determined by
the velocity, not even acceleration, not even displacement vector will give you about the idea related to in what direction object is moving. अगर हमें जानना है ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वी हैव टू बी श्योर अबाउट द वेलोसिटी. दो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था मोशन में, विच इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. सबसे पहला पॉइंट मोशन का डायरेक्शन. मोशन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन का बात करें तो दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी. एक. नंबर 2 इनिशियल वेलोसिटी. ये किस पे डिपेंडेंट होता था? दिस वाज डिपेंडेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोशन. जैसे कि मैंने लेट अस सपोज अ बलून इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. अब यहां से मैंने एक स्टोन फेंका. इफ आई थ्रू अ स्टोन, लेट अस सपोज आई जस्ट रिलीज द स्टोन. मैं यहां से हाथ बाहर निकाला और यहां पर स्टोन छोड़ दिया, तो उस स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज 0? कितने लोग कह रहे हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोशन. मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, वो हम कंसीडर करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका हिस्ट्री कहाँ था इस स्टोन का? जस्ट लुक एट द अ लिटिल मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट अगो. एंड दैट इज द रीजन गाइस, जो हम ट्रेन से लेट अस सपोज कुछ चीज हम फेंकते हैं, तो उसके पास ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उस ट्रेन के डायरेक्शन में होता है. वी विल टॉक अबाउट all these things even more when we explore motion in a plane. ठीक है, anyways, moving to the next set of 5 questions. और थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे. Okay, so everyone quickly start doing this. रिमेंबर, जितना क्वेश्चंस बचेंगे ना टीपीपी में, वो सारे उनके लिए होमवर्क होंगे who have not attempted the TPPs. Since last 2 classes I am telling you all कि TPPs कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है. और जिनका हो गया है they will do TPP 2. And in next class we will just discuss the doubts of those TPPs. वन 180 किलोमीटर्स. तो दो ऑप्शन मिले हैं मुझे, बोथ ऑफ यू से अंकित एंड टेरेंस. 180 किलोमीटर्स. चलो जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज क्वाइट सिंपल. देखो, पर्सन ड्राइव्स नॉर्थ 35 मिनट्स एट दिस मच. ये रहा नॉर्थ. एंड देन स्टॉप्स फॉर 15 मिनट्स. ही देन कंटिन्यूज नॉर्थ ट्रेवलिंग 130 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स. तो पहली चीज, ये जो स्पीड है 85 किलोमीटर्स पर आवर में है. तो ये जो टाइम है, हम ये टाइम कंसिडर करेंगे आवर्स में. 35/60 दैट इज
I divide by 5, so 7 by 12 hours. You have to find the total displacement. ये देखो नॉर्थ में जा रहा है, सेकंड केस में भी कंटिन्यूज नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेरी सिंपल, यहाँ से यहाँ तक स्पीड इनटू टाइम कर दो, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसको कंसीडर ही नहीं करना है, 130 दिया हुआ है डायरेक्ट। So if you multiply this, you will get 85 kilometers per hour. Multiply that with 7 by 12. What we get? 85 times 7 divided by 12. तो मिला हमें 49.5। इसमें ऐड करेंगे 130 जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है, हमें मिल जाएगा 179.5। We are getting 179.5 kilometers, which is approximately A. Okay. Question number 7. 7 is quite simple. I leave it up to you. जिनको doubts है ना, they can ask me. So first few questions we discussed. Now you all will tell me कि इसमें कोई doubts हैं till question number 10. अब जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे मुझे डाउट्स बताएंगे, बट आज एनी हाउ करना है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग इनटू डिस्कशन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक होना चाहिए। इन शॉर्ट TPP2 you have to attempt today and get your doubts ready by next class। ठीक है, चलो डाउट्स नहीं है ना, तो रैंडम क्वेश्चंस हम करते हैं पहले TPP1 में, and if the time remains then we will solve the rest questions, जो बच्चे होंगे वो भी कर लेंगे। I am not able to create poll for some reason। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। दिस इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना है इसको। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट? तो सबसे पहले इसमें रूल आउट होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगते हैं जबकि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो हमारे। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। गलत। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके अंदर हम जब एरिया इंक्लूड करते थे, जब कैलकुलेट करते थे, तब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती थी। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर से तो हमेशा हमें डिस्टेंस ही मिलेगा। ये तो करेक्ट नहीं है। डी, डी विल बी राइट गाइस। डी देखो, अगर एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब लेट अस से एक्सीलरेशन इज अ वेरिएबल थिंग, मान लेते हैं इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो हमें ए वी कैन राइट इट एज dv by dt, or we can also write it as v dv by ds। So if we talk about velocities in each case, that velocity is always equal to ds by dt, so definitely d should be the correct one।
Next one we'll do. Okay, this one. जल्दी जल्दी करेंगे इसको. ओके, सभी कोई करेंगे इसको. A driver takes 0.2 seconds reaction time to apply brakes.
after he sees the need for it. If he is driving the car at a speed of 54 kilometers per hour, that means the car's initial velocity is, let's convert this into meter per second, 15 meter per second. And the brakes cause uniform retardation, मतलब acceleration क्या लिखेंगे, -6, because this is retardation. The distance traveled by the car after he sees the need to apply the brakes. So distance traveled by car कितना होगा, that we need to just figure out. So how much is the final velocity? 0, because the car stops at this point. So इस case में we will directly use the equation. So if we use the equation 2as equals b square minus u square, क्या मिलेगा, -12 into s is equal to -225, right? Just put the values, ये रहा u, ये रहा v, ये रहा a, and you have to find out s from here. So if we calculate, what we get, s is equal to 225 by 12. अच्छा, इसके साथ ये जो डिस्टेंस कवर होगा, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज जस्ट द डिस्टेंस एट द टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम द टाइम द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, क्योंकि जब से ये एक्सीलरेशन, जब से ये रिटार्डेशन इनफैक्ट एक्ट कर रहा है, तब इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. बट उससे पहले ये देखो, रिएक्शन टाइम भी तो है ना, मतलब कि इतना टाइम लग रहा है उसको सोच के ब्रेक लगाने में, तो इतने टाइम तक वो कुछ डिस्टेंस और मूव करेगा, राइट? So you have to also add that distance, 0.5 0.2 seconds times 15 meter per second. Okay, so 0.2 into 15 plus 225 by 12, ये हमारा होगा डिस्टेंस. तो कितना हो जाएगा, जस्ट put 225, if I divide by 12 I get 18.75, and I add to it 15 times 0.2, so we get 3. तो मिला हमें 21.75 मीटर्स. अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता, ऑल्दो इस ऑप्शन में चलो नन ऑफ दीज भी था, आप नन ऑफ दीज कह सकते थे, 18.75 कह सकते थे, तो उस समय हम गलत होते. क्यों गलत होते, बिकॉज वी वेर नॉट इंक्लूडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल द ड्राइवर वाज जस्ट थिंकिंग टू स्टॉप, है ना, ये इसका रेस्पॉन्स टाइम है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
So stone is dropped. A stone is dropped into a well of 45 meters depth. Sound of splash due to the stone striking the water surface in the well is heard after this much. From the given data, the velocity of the sound you have to find. Everyone will do this question. So a stone is dropped in a well of 45 meters depth. ये रहा well 45 meters depth. Stone is dropped. That means initial velocity is 0. Sound of splash
All right, yes, so I was just disconnected. So here 3.125 seconds. In this much time, the person hears the sound of splash. So this time also includes the time taken by the stone to fall. So let us find the time taken to fall. क्या क्या दिया है स्टोन का? इनिशियल वेलोसिटी दिया है हमारे पास. डिस्प्लेसमेंट कितना है? -45, because this is my point of consideration, that is origin. Acceleration due to gravity, that is minus 9.8 meter per second square, and we have to find time. So I'll use s is equal to ut plus half at square. So minus 45 equal to minus 4.9 t square. तो यहां से हमें टाइम मिलेगा, and that time we will put, so we will get 45 by 4.9, and the root of this comes out to be 3.03 seconds. Right, we have got this much seconds. So out of this seconds, this much second should be taken away, because remaining only will be the time taken by the sound of the splash to reach the observer. So that will be 3.125 minus 3.03. So we will get 0.095 seconds. And we already have the distance that the sound will travel, 45 meters. So if you divide 45 meters with 0.095, we should get the answer. So you have to be sure about the calculation. So exact answer we should get, exact value we should use here. So now quickly, before wasting any time, quickly go to Kahoot everyone, and let us solve some questions there. I'll just share the code. So everyone, you can join using the code. I am not able to get any messages from you all guys. Everyone can hear me? Okay. So by some reason I am not able to write the message here. You all can. I'll just share the code here. 5079 177.
So all of you join. Only 11 of you have joined now. Quickly, we will start. Okay, let us start. ओके, सभी कोई अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. ये बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है एज़ कम्पेयर्ड टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. So I'll just end it. Let us see. सर गलत ऑप्शन दबा दिया. गलत दबा गया, कोई बात नहीं. Okay, so moving to the next. Okay, the next question here. A man in a balloon rising vertically with an acceleration of 4.9 releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is. So all these questions you all can see वही हैं जो हमने मॉड्यूल्स में किए हैं. सर थोड़ा टाइम लेके क्वेश्चन निकालना ना सर. स्क्रीनशॉट नहीं लिए? नहीं सर नहीं ले पाया. अच्छा.
अभी मैं क्वेश्चन क्या करूंगा, इस पार्ट में पेस्ट कर दूंगा, तो स्क्रीन में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो और यहाँ पर आंसर क्लिक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी जो है मैक्सिमम लोग इसमें गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? लेट अस सी। अ मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विथ एन एक्सीलरेशन, बैलून जो है वो ऊपर जा रहा है एट 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. So 2 सेकंड के बाद ये हो सकता है किसी हाइट पे आ गया हो। The greatest height above the ground reached by the ball. Okay, so at the time I release a ball, ball will also have the acceleration. What will be the acceleration of the ball? In that case, you can see acceleration due to gravity given here is 9.8. तो बॉल को बैलून से जब हम फेंकेंगे, आफ्टर अ सर्टेन इंस्टेंट इट्स एक्सीलरेशन विल बी 9.8, बट बिफोर दैट its acceleration will be 4.9 meter per second square. So let us see how do we get this exact value. So it says option 14.7 and most of you have selected 9.8 in this case. So we get 14.7 only. Okay, all right. So initial velocity will be 0. If I talk about, it says here ball releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. So we will find the final velocity. So v will be u plus at. So 0 plus 4.9 into t. T is 2 seconds. So after 2 seconds, its velocity will be 9.8, not velocity, final velocity 9.8 meter per second. What will be the height at this instant? H is equal to ut, u is again 0, so half into a into t square, that is 2 square. So we get 19 point, okay, a, sorry, a is 4.9, so we get 9.8 meters, that's the height, right? So you have to use the acceleration carefully. Now in this case the ball is at height 9.8 meters. So after certain instant, let us say it attains some height h. So we will use in this case energy conservation. So I'll use kinetic energy is equal to potential energy. So energy conservation, we have not covered them now, क्योंकि अगर हम energy conservation use करें then this question will be done with ease. So if we do not use energy conservation, it's going to take a little bit more time. So I'll do one thing, this one using equation of motion we will do in the next class. So energy conservation अभी चलो कर लेते हैं, half mv square is equal to mg h. So this gets cut, we get the height in this case as v square by 2g, और v कितना है हमारा 9.8. So 9.8 square divided by 2 times 9.8, you will get 4.9. And इसका पहले से कितना हाइट था 9.8 meters. So you get 9.8 plus 4.9. So you can see how easily I used energy conservation and found the total height above the ground that will be reached by the ball. ठीक है, अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन यू ऑल कैन ट्राई एट द होम, नहीं तो इसको हम नेक्स्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा वी विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, एक और करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर है एंड नेक्स्ट क्लास से वी विल एटलीस्ट इन द नेक्स्ट क्लास जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा वी विल स्टार्ट इटसेल्फ विथ Kahoot so that within time limit everyone will join and do the questions. चलो इस बार ज्यादा लोग करेक्ट हैं। Body is released from the top of tower of height h meter. Tower, that's height h meters. After 2 seconds it is stopped and then instantaneously released. What will be its height after next 2 seconds? Okay, so after 2 seconds it is stopped. So let us say body released, after 2 seconds it comes here, it is stopped and then instantaneously released. मतलब उसका initial velocity 0 meter per second हो जा रहा है. Then in this case what will be the height after next 2 seconds, that we have to find out. Hello, yeah. So what will be its height, we have to find after 2 seconds. So we will use 2as is equal to v square minus u square, or you can use s is equal to ut plus half at square also. Okay, so what equation we will get in this case? After 2 seconds v equals to, अच्छा यहाँ पर भी रिलीज किया है हमने तो यहाँ पर भी इनिशियल 0 है, u plus 80, so I'll take g as 10, so we'll get 0 plus 2 into 10, so 20 meter per second. तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, हाफ इंटू ut 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 मीटर्स. Now it is again released after 2 seconds, so that means it will cover another 20 meters, right? ये 20 मीटर रिलीज किया, अब यहाँ फिर से स्टॉप करके फिर से रिलीज किया, 20 मीटर हुआ, तो फाइनली कितना नीचे आया, 40 मीटर्स. तो टोटल कितना था, h मीटर्स. सो हाउ मच, व्हाट विल बी इट्स हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकंड्स? पहले हाइट था h, अब 40 मीटर्स नीचे आ गया तो हाइट हो जाएगा h minus 40. Okay, so in the next class we will start with Kahoot itself. We will begin from at this point. So after these 3 questions we will begin, and we'll also do the previous question which we have left. So see you all in the next class. But TPPs everyone will complete. So next class we are going to complete this Kahoot quiz पहले, फिर उसके बाद we will discuss the TPPs. Okay. All right everyone. Bye bye.